taxiway Bravo request for taxi clearance Vistara 518. सर आवाज आ रही है? हाँ, now am I audible? Sorry for Yes, that sir. inconvenience. Sorry for the inconvenience. Continuously application crash हो रहा है. I don't know why, but it should not be now. So we were going for a call, obtain taxi request, and this was the flight plan. ठीक है? This time recording is also on. Let me see if it is on or not. हाँ, this is on. ठीक है. So we have to look at the obtain taxi request, right? Say again all, and this time don't read the previous call. Try to say it again. ठीक है? Go ahead. Okay, sir. और Vistara 518 on 122.5. Air was 320 with turbulence medium. IFR Go ahead. Keep going on. Keep going on. I'll write. Don't worry about background noise. IFR Bhopal to Jamshedpur. Go ahead. Current position taxiway Bravo. No, यहाँ पे आपका बहुत ब्लंडर है. दिस इज नॉट इवन मिस्टेक. क्वेश्चन पढ़ो. क्वेश्चन है कि आपको टैक्सी क्लियरेंस लाना है. देन हाउ यू कैन बी ऑन टैक्सी वे? You should be either on apron or at any stand, right? देख रहे हो? If you are requiring for taxi clearance, मतलब आपके पास टैक्सी का इंस्ट्रक्शन ही नहीं है, then you should not be on taxiway. चलो, say again all. You are on apron. Current position. Current position. Stand 3, apron 2. Passenger on board 120. सिक्योरिटी चेक कंप्लीटेड. उससे पहले तभी आप पैसेंजर ऑन बोर्ड का नंबर बताओगे, राइट? सिक्योरिटी चेक कंप्लीटेड. पैसेंजर ऑन बोर्ड 120. यस. Security check completed. Passenger on board क्या है? 12. हाँ. Passenger on board 120. ठीक है. Request for taxi instruction.
Request for text instruction. 518. 598 or what? 518. 518. ठीक है. VIP on board. इसका यूज कहाँ किया? Understood? Yes. चलो, give me a fresh call then. All parameters shall be there. Fresh call. Obtain taxi clearance. Yes. Bhopal Tower, Mhm. Vistara 518 on 122.5, Airbus 320, peak turbulence medium, IFR Bhopal to Jaipur, position, stand 3, approach 2. Call security completed. Passenger on board 100. VIP on board. Request for taxi instruction on priority. Vistara 518. ठीक है. Very good. चलो. And as I said, we'll practice for some more position report condition. Now everyone is open for the answers. Sierra Oscar Hotel, Alpha Juliet Delta. Now you guys can also take the lead. ठीक है. The question is, you are, ठीक है, you are 30 nautical mile to जबलपुर. चलो, दिस इज द क्वेश्चन. यही रहेगा क्वेश्चन, कुछ नहीं. पोजीशन रिपोर्ट के क्वेश्चन में आपको हमेशा किसी ना किसी पोजीशन का हिंट रहेगा कि आप यहां से उतना दूर हो, यहां से इतना दूर हो, इसके ऊपर हो, उसके नीचे हो, इस टाइप से. डन. सो द क्वेश्चन इज, यू आर 30 नॉटिकल माइल टू जबलपुर. आपको समझ जाना होगा कि दिस इज ए पोजीशन रिपोर्ट कॉल, नथिंग एल्स. डन. गो अहेड. Bhopal Tower, सियरा ऑस्कर. हाँ, गो अहेड. Bhopal Tower, Vistara 518. अभी आप इंतजार करो. देखो, आप जबलपुर से 20 नॉटिकल माइल दूर हो तो भोपाल टावर को कॉल कैसे लगेगा? भोपाल टावर को आप कहां तक कॉल कर सकते हो? बताओ, मैप में देख के बताओ. भोपाल टावर का ऑपरेटिंग रेंज क्या है, डिस्टेंस में कितना है एंड अल्टीट्यूड में कितना है? से अगेन. So 30 nautical mile distance up to, and flight level 30 नॉटिकल माइल डिस्टेंस. हाँ, 145 का मतलब कितना फीट में? 14,500. 14,500 फीट. ठीक. So you cannot call Bhopal Tower, right? Then whom you will call there? You are at flight level 310. Look at your plan. कुछ नहीं लिखा है, मतलब आप अपने क्रूजिंग अल्टीट्यूड पे. तो किसको कॉल करोगे? यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देखो. कुछ लिखा हुआ है. ये मैं नागपुर करके. हाँ सर, नागपुर. मीन्स यू विल कॉल नागपुर कंट्रोल, नागपुर का सीनियर मोस्ट अथॉरिटी. डन. Yes, Nagpur control. Go ahead.
Nagpur control. Vistara Air 518 on 123.9er Airbus 320 IFR Jabalpur. No, you are IFR from Mumbai sorry, Bhopal to Jamshedpur, Yes, right? Bhopal to yes, yes. Bhopal, Jamshed. Go ahead. Flight level 310. Route Alpha 79er1. Correction. Current position flight level 310. चलेगा चलेगा चलेगा, ओके ओके, होल्ड ऑन। आप चाहे तो करंट पोजीशन बोल के ये सारा पैरामीटर बोलो, या प्रेजेंट पोजीशन बोल के ये सारा पैरामीटर बोलो, या बिना इन दोनों को बोले डायरेक्ट फ्लाइट लेवल, डायरेक्ट रूट या पांचों पैरामीटर से कुछ भी बोलना शुरू करो। एग्जामिनर को अपने आप समझ में आ जाएगा कि आप पोजीशन रिपोर्ट ही बोल रहे हो। ठीक है, दिस इज योर पोजीशन, फ्लाइट लेवल 310 इज योर पोजीशन। नो नीड टू से कि करंट पोजीशन, प्रेजेंट पोजीशन। इट इज बेटर इफ यू से, बट मिस हो गया बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, कंटिन्यू करो। Okay. Flight level 310. Route Alpha 79er1. Radial 1. Radial 272. And radial 0. ठीक है, 9. नो इट वाज 272, इट वाज 272। आप 3 नॉटिकल माइल टू जबलपुर से रेफरेंस ले रहे हो, जबलपुर का रेडियल आता है 272। देखो 30 नॉट, आप किससे क्लोज हो, किसके रेस्पेक्ट में पोजीशन रिपोर्ट कर रहे हो, जबलपुर के रेस्पेक्ट में, तो जबलपुर का रेडियल। Okay. Radial ठीक है, 27. Yes. Radial 272. 30 DME. Jump 30 DME. Inbound. इनबाउंड, वेरी गुड। Inbound Jabalpur. टाइम 1200. टाइम नाउ, नहीं 2 Time घंटा now. ले लिया आपने, भोपाल से जबलपुर तक में, भोपाल से डिपार्चर किया और 1200, नो 5-10 मिनट काफी। 1015. ठीक है, वेरी गुड। Time now 1015. एस्टिमेट्स, Ibuda. ये क्या है? नो एस्टिमेट बोल के, एस्टिमेटिंग इबूडा। Estimating Ibuda 1025. ठीक है, Arrivo. अरीवो या अराइवो चलेगा। Arrivo 1030. ETA Jamshedpur 1045. Vistara 518. वेरी गुड, गुड वन, गुड वन। अल्फा जूलियट डेल्टा, आर यू अवेलेबल टू आंसर? यस सर। ठीक है,
you are 20 nautical mile from जबलपुर, ठीक है, 20 nautical mile from जबलपुर, और ठीक है 20 nautical mile from जबलपुर, बस यही है आपके आंसर में। चार्ट को ध्यान से देखो, ठीक है, आपके आंसर में विस्की 100 एक जो रूट है आफ्टर अरीबो, ठीक है, अरीबो जा रहा है वो जो आप बोलो, इस रूट का क्रॉसिंग क्लियरेंस और इस रूट का एस्टिमेट भी आपके आंसर में दिखना चाहिए। चलो, 20 nautical mile from अरीबो, सॉरी फ्रॉम जबलपुर। Nagpur control. No, it won't be Nagpur control. Have a look. नागपुर कंट्रोल इज फ्लाइट लेवल 255। उसके ऊपर देखो TMA वाराणसी लिखा है, VIBN Yes sir. देखो। वाराणसी हाँ, इस वाले चार्ट में एक क्वेश्चन यही है कि जब आप भोपाल से जमशेदपुर के बीच जाते हो तो इसी बीच में दो कंट्रोल आ जाते हैं, एक नागपुर और एक वाराणसी, ठीक है, ये ध्यान रखना, यही एक एक्सेप्शनल चार्ट है। सेम एरिया में थोड़े से में ATC चेंज हो जाता है। चलो, किसको जाएगा कॉल? ओके सर, वाराणसी कंट्रोल। I say again, वाराणसी कंट्रोल। वेरी गुड। विस्तारा 518 on 119.0। current position 20 nautical mile outbound Jamshedpur। I say again, correction, 20 nautical mile outbound Jabalpur, route Alpha 791, radial 940 flight level 310। I am now 1030 1040 Arrivo 1055 estimate time of arrival। नहीं, फिर आपने क्रॉसिंग क्लियरेंस कहाँ दिखाया? विस्की 100। आपका नेक्स्ट एस्टिमेट विस्की 100 ही रहेगा। डू यू नो दैट आंसर और शैल आई कॉल? चलो यहां देखो, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। हमने एरिवो तक का सफर कर लिया। अब आगे आप क्या देखते हो कि एक रूट जो है वो आपके करेंट रूट को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट भी आपका एक वे पॉइंट कहलाएगा और इसको भी रिपोर्ट किया जाएगा, प्लस इसको सेम रिपोर्ट किया जाएगा विथ अल्टीट्यूड और विथ टाइम, दैट्स ऑल। तो अरीवो 1055, विस्की 100 1110, तब आप कह सकते हो ETA जमशेदपुर 1140, लाइक दिस, ठीक है। विस्की 100 भी एक MRP की तरह यूज होगा क्योंकि ये आपके रूट को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उस इंटरसेक्शन को आप कहां पे क्रॉस करोगे? किसी भी रूट को क्रॉस करते टाइम हम दो चीज ध्यान में रखते हैं, किस टाइम क्रॉस करेंगे और उस टाइम पे हमारा क्रॉसिंग अल्टीट्यूड क्या रहेगा, हम आगे देखेंगे इस कॉल को, ठीक है। इस टाइप के आपको आगे एग्जांपल मिलेंगे, बट पोजीशन रिपोर्ट के टाइम पे ही सीख लो। अगर कोई रूट इंटरसेक्ट करेगा तो हमको रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है कि उस रूट को क्रॉस करते टाइम हमारा टाइम क्या रहेगा और किस अल्टीट्यूड पे हम क्रॉस करेंगे। तो इन दिस क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट वी विल क्रॉस एट फ्लाइट लेवल 310, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हम इस पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं।
बस हमने टाइम बता दिया कि 11:10 पे व्हिस्की 10 को क्रॉस करूंगा। डन, समझ में आया सबको? यस सर। सर इसको कुछ हाँ ऐसा हाँ, क्रॉसिंग करके नहीं बता सकते हैं, विल क्रॉसिंग रूट रिपोर्ट वो 00 डेविएशन टाइप। वाले कॉल में, डेविएशन में यहाँ नहीं, यहाँ सिंपल। ठीक है, डेविएशन में, रूटिंग क्लियरेंस में अभी नहीं। ठीक है, और ये पोजीशन रिपोर्ट में एयरक्राफ्ट टाइप, वेग टर्बुलेंस और सेक्टर यस। बोलना अब कंपलसरी है या बताओ। फिर compulsory है? ओके चलो, अब आते हैं उस मैटर पे। वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। एयरक्राफ्ट टाइप, सेक्टर रिक्वेस्ट, ये सब अभी देखो। पोजीशन रिपोर्ट का कॉल 10 नंबर का है। 10 नंबर के कॉल में अगर आप 4 पैराग्राफ का आंसर करोगे, देखो टोटल 4 पैराग्राफ से ज्यादा नहीं है, इसको वैल्यू नहीं देता एग्जामिनर। अगर 10 नंबर के कॉल में आप 4 पैराग्राफ का आंसर करोगे तो आप एग्जामिनर से क्या एक्सपेक्ट करते हो? कभी वो आपको 10/10 देगा? 8 नंबर देगा मैक्स, मैक्स टू मैक्स। इवन आफ्टर यू आर गिविंग 100% करेंट कॉल, वो 8 नंबर देगा। वहीं पे अगर आपने सेक्टर रिपोर्ट ऐड कर दिया, एयरबस 320 IFR भोपाल टू जमशेदपुर, अब इस कॉल में बोलने के लिए कुछ बाकी रह गया नहीं, तो आपको वो 10/10 दे सकता है। तो अगर आंसर छोटा हो रहा है तो उसको एक स्टैंडर्ड लेंथ का बनाओ बाय यूजिंग योर सेक्टर रिक्वेस्ट। हालांकि सेक्टर रिपोर्ट करना नेवर मैंडेटरी, इवन आफ्टर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हुए हैं, ठीक है, जो जिनको आंसर करने में प्रॉब्लम होती है, जिनको आंसर परफेक्टली नहीं आता है, उस केस में क्या करते हैं स्टूडेंट, सेक्टर रिपोर्ट तक बोलने में ही ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो एग्जामिनर बोलता है कि मेन मेन आंसर करो, बाकी के फालतू चीज हमको मत सुनाओ, कि IFR इधर से उधर, एयरबस 320, वेक्टर बुलेंस, ये सब से हमको कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट मेन हमको आंसर बताओ। इफ दे गेट इरिटेट, तब वो आपको ऐसा ताना मारेंगे। एंड एग्जामिनर्स इन RT बहुत अलग लेवल के होते हैं, वो आपको सही से एग्जाम दे दे ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, वो इतने प्रेम से आपसे बिहेव कर ले, हो ही नहीं सकता। आपको फर्स्ट आंसर में ही ऐसा ताना मारेंगे कि आपको लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, सो इट इज अप टू यू, इट इज नॉट मैंडेटरी, बट आई विल सजेस्ट कि बोलो। 2-3 लाइन का आंसर करोगे, डिसअपॉइंटमेंट रहेगा हमेशा, वो 6 नंबर दे देगा, तब क्या करो? ठीक है, सो मेक ए स्टैंडर्ड लेंथ, दैट्स ऑल। सर ये इबूडा, डन। इस सेक्टर में इबूडा पे भी रूट जा रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो इसमें भी हाँ, वेरी गुड। अभी इबूदा क्या है? इबूदा अपने आप में एक MRP है, देख रहे हो, वो अपने आप में एक MRP है बना हुआ। तो वहां पे हम उस पर्टिकुलर रूट को नहीं बोलेंगे, क्योंकि उस इंटरसेक्शन को इन लोगों ने वे पॉइंट ऑलरेडी बना दिया है। ठीक है, इबूदा, विलो, या रास्ते में अगर आपको कभी कुछ एयरपोर्ट मिलेंगे, सपोज आपका भोपाल से जमशेदपुर है, तो बीच में जबलपुर है, जबलपुर पे 3-3 रूट कट रहे हैं, तो क्या तीनों को रिपोर्ट करेंगे? नो। अगर किसी रूट के इंटरसेक्शन पे ऑलरेडी एक वे पॉइंट है, तो हमने उस वे पॉइंट को रिपोर्ट कर दिया, दैट इज सफिशिएंट। गॉट इट? यस सर। चलो, next question is for Victor Tango Sierra Oscar Hotel. He is going to answer. ठीक है, you are over Ibuda, go ahead. चलो, Okay. Varanasi control. Vistara 518 on 119.0 119er 119er.0 Airbus 320 IFR Bhopal to Jamshedpur. Current position
on Ibuda. ओवर यूज करो, ओवर या ओवरहेड. Correction. Over Ibuda. Radial 094. Flight level 31. Sorry. Correction. 094. Flight level 310. Time now 1040. Estimating Arrivo 1110. Whiskey 100. 1130. Estimated time of arrival ETA, सिंपली ETA बोलो, समझ जाता है. हाँ. ETA जमशेदपुर 1200. विस्तारा 518. चलो इस क्वेश्चन में देखो, when we are reporting the intersection of any point, either you can simply tell the name of this route, or you can also mention intersection of whiskey 100 and alpha 791 1130. इस टाइप से इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू रूट्स, इसको हम लोग पहुंचेंगे एट 11:30. सो दीज टू ऑप्शंस आर अवेलेबल, वॉट एवर फील्स यू गुड. डन. चाहे रूट का नाम डायरेक्ट ले लो या उसको इंटरसेक्शन बोल के रिपोर्ट करो. नाउ अल्फा जूलियट डेल्टा एंड अदर स्टेशन विल लेट मी नो इस क्वेश्चन में क्या मिसिंग है, विच शैल बी रिपोर्टेड. पोजीशन रिपोर्ट में कुछ तो पैरामीटर कम है. Flight level. नो, इट इज Flight गिवन. level. No, route. रूट मिसिंग है. वेरी गुड. रूट अल्फा 791. इस केस में रूट मैंडेटरी है. आप अगर चाहते तो रेडियल यू कैन ऑप्ट आउट. रेडियल नहीं बोलते तो भी चलता, बिकॉज यू आर ओवरहेड एनी एमआरपी. बट रेडियल बोल भी दिया, दैट इज ओके. वेरी गुड, नेवर इशू. रूट यहां पे इंपॉर्टेंट था. डन. चलो, so this were the some of the position report call. Now let me एक mix सेकंड the मेरा मुझे एक सेकंड मुझे ये कॉल हाँ. कंप्लीट हुआ था तब मुझे याद आया था, तो मैं इसको बोल सकता हूँ ना कि रूट. yes, लास्ट में, या लास्ट में ओके. रूट अल्फा 791 911 या विस्तारा ओके. 518. हाँ ये तब याद आया था मुझे. Done. ओके. Now the condition in front of you which will get the pan and mayday situation in front of you. अब क्या आया, you are overhead Ibuda. ठीक है. मेक इट करेक्शन. ठीक है, थोड़ा सा और कंडीशन चेंज करता हूं. यू आर 20 नॉटिकल माइल टू जबलपुर. योर को पायलट गेट्स फेंटेड. अगर किसी को आंसर करने का मन है प्लीज गो अहेड, अदरवाइज आई विल डेफिनेटली गिव द आंसर. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखो, पोजीशन के साथ साथ इमरजेंसी सिनेरियो को मिक्स कर दिया. यू आर 20 नॉटिकल माइल टू जबलपुर. इट हिंट्स अबाउट योर पोजीशन. योर को पायलट गेट फेंटेड. आपका को पायलट बेहोश हो गया. अब क्या होगा आंसर? एनीवन? गो अहेड. Yes sir, मैं करूँ. Alpha Juliet Delta. गो अहेड इफ यू आर. हाँ हाँ हाँ. Nath. Pen. Pen. पैन होगा. Medical. को पायलट फेंटेड नहीं, Mayday. मेडिकल भी नहीं है, मेडे है. मेडे है. Midday. Nagpur control.
Vistara 518 on 123.9ers, Airbus 320, IFR flight, Bhopal to Jamshedpur, current position 20 nautical mile, inbound Jabalpur, flight level 310, route Alpha 791, radial 272, time now 1030, co-pilot Fantasy, unable to Proceed further. Unable to proceed fly, further. ठीक है, unable to fly unable to further proceed, या unable to unable to proceed further, flight नहीं, either आप बोलो Request- unable to fly further और unable to proceed further. दोनों में से unable to proceed further, intended to land back at इतना वापस क्यों जाना? जबलपुर क्यों नहीं जा रहे हो? लैंड बैक क्यों? Why land back? Why land back? direct You want to go to Yes, Bhopal? You want to go to Bhopal और जबलपुर? यही जबलपुर सर लैंड करेंगे तो उसके लिए लैंड Request बैक नहीं, to land would like at to land. जबलपुर हाँ, yes. Very good. Request Like to instructions. Request. देखो, अब यहाँ से आराम से, आपसे लैंग्वेज नहीं बन रहा है, थोड़ा होल्ड कर लो. हमने कंडीशन में क्या लिखा सबसे पहले? एवरीवन यू कैन मेक अ फाइनल कॉल, हैव अ लुक. क्वेश्चन में है कि 20 नॉटिकल माइल जबलपुर जाते जाते आपका को पायलट बेहोश हो गया. अब इस केस में आप क्या करोगे? सिंगल पायलट ऑपरेट कर नहीं सकते, यानी आपको नियर बाय एयरपोर्ट पे लैंड करना है. तो जबलपुर के पास भी एयरपोर्ट है, क्यों ना यहीं लैंड कर जाए, राइट? तो आपको चाहिए जबलपुर में लैंड करने का इंस्ट्रक्शन. तो हमने बोला कि वी आर एट 20 नॉटिकल माइल इनबाउंड जबलपुर, फ्लाइट लेवल 310, अल्फा 791, रेडियल 272, टाइम नाउ 1030. को पायलट फेंटेड, को पायलट बेहोश हो गया. अनेबल टू प्रोसीड इसके बाद में फर्दर, बोलूं? मैं आगे नहीं जा सकता हूँ. हाँ, गो अहेड. Co-pilot get fainted and to proceed further. Request instruction to land at Jabalpur वेरी गुड. and medical service on arrival. Time now बोल दिया ना. Okay, time. बताया ऊपर. Correction. Estimating time of arrival. ETA Jabalpur हाँ, 1100. Vistara 518. चलो ठीक है. नाउ दिस वन इज ऑल्सो गुड कॉल. बस ईटीए के जगह पे आपको एस्टिमेटिंग बोलना है, ठीक है? एस्टिमेटिंग जबलपुर. ईटीए हमेशा फाइनल एस्टिमेट्स को बोला जाता है, बट इन दिस केस दैट वाज योर टेम्पोररी स्टॉप, तो आप उसको सीधे बोल दोगे एस्टिमेट जबलपुर. अभी इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं. विक्टर को यूनिफॉर्म, पे अटेंशन, ठीक है? क्या है इस कंडीशन में कि हमारा को पायलट बेहोश हो गया, राइट? अब क्या? रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शंस टू लैंड एट जबलपुर, हम चाहते हैं कि जबलपुर में लैंड करे. एंड मेडिकल सर्विसेज ऑन अराइवल, जब हम पहुंचे तो वहां पे मेडिकल सर्विसेज भी हमको मिलेगा. तो आप कब पहुंचोगे?
एस्टिमेटिंग जबलपुर 11 बजे, अभी 10:30 हो रहे हैं, 11 बजे मैं जबलपुर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, आकाशा सॉरी विस्तारा 518। इसी को आप चाहो तो रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शन वाले को दूसरे टर्म में भी बोल सकते हो। कैसे? वुड लाइक टू लैंड एट जबलपुर। ठीक है, वुड लाइक टू लैंड एट जबलपुर, मैं चाहता हूं कि जबलपुर लैंड कर जाए। रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शंस, बताइए कैसे लैंड करना है। एंड मेडिकल सर्विसेज ऑन अराइवल, को पायलट बेहोश है तो मेडिकल सर्विसेज भी चाहिए हमको। एंड मेडिकल सर्विसेज ऑन अराइवल, एस्टिमेटिंग जबलपुर 1100, आकाशा एयर 518। गॉट दैट? समझ में आ गया? पक्का समझ में आया? चलो देन, नाउ द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज यू आर, ठीक है, अब डिस्टेंस में कुछ भी आपको पर्टिकुलर डिस्टेंस नहीं लिखा, डिस्टेंस भी आपको अपने मन से ले लेना है। ठीक है, यू आर नियर जबलपुर, आइदर टू और फ्रॉम आप अपने मन से सोच सकते हो। ठीक है, यू आर नियर जबलपुर, यू आर नियर जबलपुर, टू या फ्रॉम आप पे डिपेंड करता है। यू आर नियर जबलपुर, वन पैसेंजर फॉलन सिक सीवियरली। ठीक है, क्या है कंडीशन? वन पैसेंजर fallen sick severely. Whoever is ready can go ahead with the answer. विक्टर के लिए इन्फॉर्म प्लीज लेट मी नो, पिछला आंसर आपको क्लियर हुआ था कि नहीं? हाँ सर, क्लियर। ठीक है, देन फॉर दिस whoever is ready go ahead with the answer. You are near जबलपुर, डिस्टेंस नहीं बताया, आप अपने मन से लो, फ्रॉम या टू डिपेंड्स ऑन यू। चलो, एनी स्टेशन कैन गो अहेड। ठीक है सर, मैं करता हूँ अल्फा जूलियट डेल्टा। पेन 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 मेडिकल वाराणसी कंट्रोल। नहीं, अच्छा चलो चलो आप आंसर कर लो पहले। वाराणसी कंट्रोल, विस्तारा 518 on 119.0, Airbus 320, IFR भोपाल to Jamshedpur. Current position 20 nautical mile outbound Jabalpur. Flight level 310, route Alpha 791, radial 094, one passenger, fallen sick severely, would like to land back at Jabalpur. Correction. Land back at Jabalpur. Request permission and medical team on arrival. Vistara 518. where is your estimates and where is your current time? I say again. Time now 1035. Vistara 518. You're estimating time to Jabalpur?
जबलपुर कब पहुंचोगे, कब चाहिए आपको मेडिकल सर्विसेज? सर यहाँ से निकल चुके हैं। ना, निकल चुके हो, आप वापस जाना चाहते हो, राइट? तो जब आप वापस जाओगे तो हाँ। कितना टाइम लगेगा आपको? यस सर। एस्टिमेट जबलपुर 1050 ठीक, विस्तारा चलो है। अभी एक क्लैरिटी ले लो सर। समझ गए, समझ गए, समझ गए। अभी सब लोग एक क्लैरिटी ले लो। एस्टिमेटिंग टू एनी स्टेशन, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा आगे का एयरपोर्ट ही हमारा एस्टिमेट है। हम अगर किसी रीजन से किसी अल्टरनेट एयरड्रोम पे जा रहे हैं या बैक हो रहे हैं, तो जहां भी हम अगला पहुंचेंगे, जो भी हमारा नेक्स्ट एमआरपी होगा, अगर हम रिटर्न हो रहे हैं तो हमारा पिछला एयरपोर्ट ही हमारा नेक्स्ट एमआरपी है, वो हमारा एस्टिमेट है हमेशा। ऐसा नहीं कि एस्टिमेट्स हम आगे का ही लेंगे। हमने ये कहा ना कि मैं जबलपुर जाना चाहता हूं वापस, तो अब जबलपुर हो गया हमारा एस्टिमेट। तो अभी 10:35 हो रहे हैं। अगर आप हमको परमिशन दोगे कि ठीक है जबलपुर आ जाओ, तो आपको क्या लगता है कि आप अपने एफएमएस पे जब जबलपुर सेट करोगे तो जबलपुर में जाते हैं पे आपको कितना टाइम दिखाएगा? 10 मिनट, 20 मिनट, कितना? वो आप कैलकुलेट करके बताओ। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस, नो? अब हम ओके सर। यस सर। विक्टर यूनिफॉर्म डन? यस सर। ठीक है, देन चलो एक क्वेश्चन मैं करता हूं आप सबको दिखाने के लिए। ठीक है, यू कैन मेक एज ए नोट, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी गिवन बाय विक्टर किलो यूनिफॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन इज you are 20 nautical mile to Jabalpur. Your cabin pressurization fails and pressure reduces rapidly. ठीक है, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ता हूं। You are 20 nautical mile to Jabalpur. ठीक है, your cabin pressurization fails, cabin pressurization system fails and pressure reduces rapidly. TA, take action. देखो, as per the standard this call will go to Nagpur control because 20 nautical mile to Jabalpur, you are at flight level 310, so it will go Nagpur. अभी देखो, जब आपका केबिन प्रेशराइजेशन फेल होता है ना, आपके एयरक्राफ्ट का, मैं सारे एयरक्राफ्ट का तो नहीं बता रहा हूं, बट एज ए जनरल, ठीक है, इफ यू आर ऑपरेटिंग अबव 8000 फीट, ठीक है, 8000 फीट, तो आपके एयरक्राफ्ट में ऑक्सीजन सिस्टम होने चाहिए। एंड मोर ऑफ द बिजनेस जेट्स एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट, they have set their cabin altitude which varies from 8000 to 12000 फीट। आप सबने ऑक्सीजन सिस्टम में पढ़ा होगा कि केबिन अल्टीट्यूड को 8000 फीट से 12000 फीट के बीच में मेंटेन करते हैं। अगर आपका केबिन का प्रेशर इस जो भी 8000 से लेके 12000 फीट तक का अल्टीट्यूड है, अगर आपके केबिन का प्रेशर इस अल्टीट्यूड के एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर में जो एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है, उससे अगर कम पड़ जाएगा तो आपका एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। या अगर आपके केबिन का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा होगा तो आपका एयरक्राफ्ट बर्स्ट कर जाएगा। ठीक है, दोनों सिनेरियो हो सकते हैं। तो आपका एयरक्राफ्ट का प्रेशराइजेशन सिस्टम अल्टीट्यूड को मेंटेन रखता है। तो जैसे ही आप मोर देन 12000 फीट क्रॉस करोगे, ठीक है, अगर आपका केबिन प्रेशराइज्ड नहीं है तो तुरंत ऑक्सीजन मास्क ड्रॉप हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप उससे ज्यादा हाइट पे फ्लाई कर रहे हो और किसी भी रीजन से प्रेशराइजेशन सिस्टम फेल हो गया, तो आप तुरंत नीचे आओ। ठीक है, बिलो 8000 फीट आप आओ, ताकि आपके पैसेंजर्स कंफर्टेबली ऑक्सीजन से सांस ले पाए, नहीं तो ऑक्सीजन हाइपोक्सिया से मर जाएंगे। हाइपोक्सिया क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन। डन?
So this is the scenario, and how the answer will go, I am giving the call. Have a note. Mayday, pressure rapidly lose है. Nagpur control, Vistara 518 on 123 decimal liner, Airbus 320, IFR Bhopal to Jamshedpur. Current position on flight level 310 Alpha 791, radial 27220 DME, inbound Jabalpur. Time now 1020. ये हो गया हमारा पोजीशन. अब देखो, पहले यहां तक था हमारा आइडेंटिफिकेशन, ये हो गया हमारा पोजीशन. अब आएगा सिचुएशन. क्या हो गया, क्यों कॉल किया? केबिन प्रेशराइजेशन सिस्टम फेल्स. ठीक है, प्रेशर रिड्यूसेस रैपिडली, जैसा क्वेश्चन में लिखा है सेम. ठीक है, प्रेशर रिड्यूसेस रैपिडली. लीविंग फ्लाइट लेवल 310 फॉर फ्लाइट लेवल 80 या फिर फॉर 8000 फीट. रिक्वेस्ट परमिशन विस्तारा 518. या फिर जहां पे हमने एज ए पायलट इंपॉर्टेंट समझा कि फ्लाइट लेवल छोड़ना ज्यादा जरूरी है, नीचे आना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए हमने यहां पे डायरेक्ट बोला लीविंग फ्लाइट लेवल 310. डायरेक्ट मैं अपना अल्टीट्यूड लूज कर रहा हूं. या फिर इसके अल्टरनेट में आप एज अ सोबर पायलट मीन्स एक समझदार पायलट के जैसे भी बिहेव कर सकते हो. क्या? वुड लाइक टू. ठीक है, वुड लाइक टू डिसेंड टू फ्लाइट लेवल 80 फॉर फर्दर फ्लाइट. क्लियर? रिक्वेस्ट परमिशन. पहले उसको आप हम्बली रिक्वेस्ट भी कर सकते हो कि हम चाहते हैं कि फ्लाइट लेवल 8000 पे आ जाए फर्दर जर्नी के लिए. ठीक है, रिक्वेस्ट परमिशन. बोथ ऑफ द आंसर क्लियर टू यू? दोनों समझ में आया? आप लोगों ने नोट किया? यस यस सर. अफर्म. चलो, यस सर. अब तीसरा टाइप का आंसर. यहां पे आपने समझा कि फ्लाइट लेवल 8000 फीट पे जाके हमारा काम बन जाएगा, केबिन अल्टीट्यूड मेंटेन हो गया, हम आगे चले जाएंगे. बट आप एक यंग पायलट हो, आपको टेंशन में ज्यादा काम नहीं हो पाता है आपसे, तो आप रिलीफ ढूंढोगे. कैसे? केबिन प्रेशराइजेशन सिस्टम फेल्स, प्रेशर रिड्यूसेस रैपिडली. ठीक है, लीविंग फ्लाइट लेवल 310 फॉर फ्लाइट लेवल 80, अनेबल टू प्रोसीड फर्दर, आगे नहीं जा सकते हैं. रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शंस टू लैंड एट जबलपुर, एस्टिमेटिंग जबलपुर 1030, आकाशा एयर 518. आगे जाऊंगा ही नहीं, जबलपुर पे जाके जहाज खड़ा कर दूंगा. डन. रीजन में भी एनीथिंग. आपने फ्यूल कम लिया है तो लो हाइट पे ज्यादा फ्लाई नहीं कर सकते, पैसेंजर ज्यादा है, आप उनको कम अल्टीट्यूड पे बिना ऑक्सीजन के फ्लाई नहीं करवाना चाहते. ऑल थ्री आर एक्सेप्टेबल आंसर. क्लियर? अब आप बोलोगे सर ये जो आपने बीच बीच में बोला कि एक समझदार पायलट ये कर लेगा, जो थोड़ा डरता है वो ये कर लेगा, जो क्या कहते हैं पायलट कंट्रोल में रहता है वो अपना फ्लाइट कंटिन्यू कर लेगा, ये सब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा पायलट बने? समझदार पायलट बने या डरने वाला बने या एक सोबर बिहेवियर का बने? कैसे डिसाइड करें? इट डिपेंड्स ऑन यू. आप तीनों टाइप में से, आपने नोट किया होगा नोटबुक पे, इसलिए मैंने मिटा दिया है अभी. आप तीनों टाइप में से किसी भी टाइप का आंसर करो, एग्जामिनर आपको जरूर टोकेगा. ऐसा क्यों किया आपने? आपके मन में बस उसका रिप्लाई रहना चाहिए, वो भी स्ट्रांग. अगर आप वहां पे शक पका गए, हिकअप्स आ गया,
5 नंबर कट गया, ठीक है, 20 में से 5 नंबर कट गए। उसने पूछा कि 8000 फीट पे जाके तुम्हारा काम बन जाएगा? अफर्म 8000 फीट इज सफिशिएंट, ऑक्सीजन कैन बी मेंटेन्ड। फिर आपने बोला जबलपुर पे लैंड कर जाऊंगा, तो एग्जामिनर काउंटर आपसे पूछेगा कि जबलपुर पे लैंड क्यों करना चाहा? सर आई डोंट फील सेफ टू प्रोसीड फर्दर, 8000 फीट पे 120 पैसेंजर को लेके आगे नहीं जाऊंगा। डन, ठीक है, दोनों आंसर सफिशिएंट है। आप चाहो तो 8000 फीट से कंटिन्यू करो, चाहो तो जबलपुर में लैंड कर जाओ। एग्जामिनर आपको दोनों में टोकेगा, बट आंसर आपका रेडी रहना चाहिए। अगर आपने बोला सॉरी सर लैंड कर सकते हैं जबलपुर पे, गए आपके नंबर, क्योंकि एज अ पायलट आप उस जहाज के कमांडर हो, और कमांडर कभी गलत नहीं होता है, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान के इतने सारे वॉर हुए, या किसी भी दो कंट्री में वॉर होता है, कोई भी या फिर आप इतने सारे गेम देखते हो, कोई भी टीम हारे या जीते, कैप्टन कभी भी दोषी नहीं होता है। उस स्पॉट पे जो कोई परफॉर्म कर रहा है, उसके बुद्धि ने जो उसको अलाउ किया, उसके सोचने समझने की शक्ति ने जो उसको परमिट किया, उसने वो काम किया। डजंट मैटर ओवरऑल दैट इज अ राइट और रॉन्ग। तो एज अ पायलट अगर आप ये फील करते हो कि हमको जबलपुर लैंड करना चाहिए, करो, कोई मना नहीं करेगा। एंड एज आई टोल्ड अर्लियर, ATC is not your boss. They are just the service provider. Either they can say yes or they can say no based on the traffic. That's all. तो एज ए कमांडर, एज ए पायलट, आपने जो फील किया आप उस हिसाब से आंसर करो, बस रेडी रहो एग्जामिनर के काउंटर के लिए। वो आपको जरूर टोकेगा कि ऐसा क्यों किया, वो भी प्रेम से नहीं पूछेगा, डांट के पूछेगा कि ऐसा क्यों किया आपने, वाई जबलपुर? तो आपको बोलना है सर आई डोंट फील सेफ टू फ्लाई विथ 120 पैसेंजर अप टू सो मच ऑफ डिस्टेंस, आई फील जबलपुर टू बी लैंड सेफली, ठीक है। और भले वो आपको एग्रीमेंट नहीं दे, हाँ या ना बोले, बट अंदर ही अंदर वो आपके आंसर से सेटिस्फाइड होगा, ठीक है। सो बी रेडी फॉर सच थिंग्स ऑल्सो। भले आप कितना भी सही आंसर करो, एग्जामिनर वहां पे आपको परेशान करने के लिए बैठा है, वो आपके आंसर से 100% सेटिस्फैक्शन दिखाएगा ही नहीं। डन? यस नो एनीथिंग क्लियर? यस सर। यस। तो जब भी आपका पैन या मेडे सिचुएशन आएगा, ठीक है, जब भी आप पैन या मेडे कॉल करोगे, आप तैयार रहो एग्जामिनर के काउंटर के लिए, ठीक है। वो काउंटर क्वेश्चन करेगा, बट वहां पे डरना नहीं। ह्यूमन फैक्टर में हमने एक चीज क्या पढ़ा था, लैक ऑफ असर्टिवनेस। असर्टिवनेस का मतलब होता है कि आपको जो सही लगा आपने वो किया। अगर वो आप में लैकिंग है तो आप ह्यूमन फैक्टर के हिसाब से डर्टी डजन्स के पार्ट हो, यानी आप एक परफेक्ट एविएटर नहीं हो सकते। आपको फील हुआ कि हमको जबलपुर लैंड करना चाहिए, करूंगा, नहीं मैं नहीं उड़ाऊंगा तुम्हारा जहाज, ठीक है। विथ प्रेशराइजेशन सिस्टम फेल आई कैन नॉट ऑपरेट एयरक्राफ्ट, दिस इज माई डिसीजन, ठीक है। और विथ प्रेशराइजेशन सिस्टम फेल आई कैन फ्लाई विथ लो अल्टीट्यूड, दिस इज ऑल्सो माई डिसीजन। क्लियर? नाउ next question in front of you, similar to that. You are 20 nautical mile to Jabalpur. Flight control sluggish. Go ahead. Anyone would like to answer? Alpha Juliet Delta, Sierra Oscar Hotel. चलो मैं ही आंसर देता हूं। फ्लाइट कंट्रोल स्लगिश, पैन कॉल, सो दिस विल गो पैन Nagpur control Vistara 518 on 123.9er Airbus 320 IFR Nagpur
करेक्शन, भोपाल टू जमशेदपुर। देख रहे हो करेक्शन का यूज, जैसे ही मिस्टेक हो तुरंत करेक्शन। भोपाल टू जमशेदपुर, current position flight level 310 alpha 79er1 radial 272 20 DME inbound Jabalpur, time now 1020, flight controls sluggish, flight controls sluggish, would like to land at Jabalpur, request permission, estimating Jabalpur 1030, Vistara 518। क्लियर? क्या बोला हमने कि फ्लाइट कंट्रोल स्लगिश है, हम चाहते हैं कि जबलपुर लैंड करे। आप यहां पे एक चीज और बोल सकते हो, फ्लाइट कंट्रोल स्लगिश, अनेबल टू प्रोसीड फर्दर, आगे नहीं जा सकते। ठीक है, अनेबल टू प्रोसीड फर्दर, वुड लाइक टू लैंड एट जबलपुर, जबलपुर लैंड करना चाहते हैं। रिक्वेस्ट परमिशन या फिर रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शंस, ये भी बोल सकते हो। बताइए कैसे लैंड करना है। एस्टिमेटिंग जबलपुर 1030, विस्तारा 518। समझ में आया? Affirm. यस, नो, अक्का, एवरीवन गॉट इट? Yes. हाँ, ए वन Yes, सेकंड, sir. करेक्शन जब हम यूज करेंगे इन एग्जाम में, तो करेक्शन बोलेंगे तो हाँ, उसको कट कर देंगे या करेक्शन लिखेंगे? बताता हूं, कट कर देंगे। सपोज अभी जैसे मेरे से क्या मिस्टेक हुआ था, मैंने बोल दिया था नागपुर, बट पेपर पे मैंने नागपुर लिखा ही नहीं था। ठीक है, तो ओके इस केस में कट करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तो करेक्शन बोल के आगे बढ़ जाओ। आपने जो ओके नागपुर बोल दिया होगा, हो सकता है एग्जामिनर ने अपने नोटबुक पे लिख लिया हो नागपुर, तो ओके आपने करेक्शन बोला लेकिन आपके पास कट करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन सपोज आपने लिख भी दिया, फिर आपको याद आया कि अरे भोपाल था, तो जब आप करेक्शन बोलोगे ना तो इस नागपुर को ऐसे कट कर दोगे और आगे लिखोगे भोपाल। ओके ठीक है, अगर पेपर पे लिखा गया है तो कट कर देंगे, नहीं लिखा है तो करेक्शन बोल देंगे, वर्बली वो क्लियर हो जाएगा। ओके। चलो, नेक्स्ट टॉपिक इन फ्रंट ऑफ अस विल बी टॉप ऑफ डिसेंड एंड टॉप ऑफ क्लाइंब। ठीक है, बी केयरफुल, इफ यू वांट ब्रेक यू कैन टेक अ ब्रेक फॉर 2 minutes, 2220, we'll meet at 2220 and then we'll start our new topic। ठीक है, टॉप ऑफ क्लाइंब एंड टॉप ऑफ डिसेंड। ठीक है, these two are parts of position report only, that's why we'll not pay more than 10 minutes on this। ठीक है, but take a break of 2 minutes, we'll meet at 2220। तब तक चाय कॉफी whatever is available with you, water you can have that, and we'll meet at 2220।
Okay, so has everyone back? Shall we move ahead? Roger. ठीक है. Now, the topic in front of us is TOC, TOD. अभी तक हो सकता है आपने TOC को कभी पढ़ा होगा टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है, if you have seen any documents or anything. But in related to your position, ठीक है, while we are reporting our position, TOC इसका मतलब होता है मार्कर आ रहा है, टॉप ऑफ क्लाइंब, ठीक है, एंड TOD का मतलब होता है टॉप ऑफ डिसेंड. डन. अब आप बोल सकते हो कि सर आपने अभी इतनी अच्छी हैंडराइटिंग लिखी, तो जब आप आंसर लिखते हो तब क्यों ऐसा स्क्रिबल कर देते हो, वहां पे हमको नोट करने में प्रॉब्लम होती है. दैट प्रॉब्लम मेक यू स्ट्रांग, डोंट बी वरीड. जब आंसर राइटिंग करता हूं मैं जानबूझ के अपनी हैंडराइटिंग खराब करता हूं ताकि आप लोग ऑडियो पे ध्यान दो, ठीक है, विजुअल्स पे कम. TOC मीन्स टॉप ऑफ क्लाइंब एंड TOD मीन्स टॉप ऑफ डिसेंड. अभी देखो क्या होता है, सपोज वी आर फ्लाइंग इन बिटवीन टू एयरपोर्ट्स A to B, ठीक है, एक एयरपोर्ट A है इधर लेफ्ट साइड में, दूसरा एयरपोर्ट एक है B, दो एयरपोर्ट है. जनरली हमारा फ्लाइट कैसा होता है, वी आर टेकिंग ऑफ फ्रॉम दिस एयरपोर्ट, ठीक है, वी आर टेकिंग ऑफ फ्रॉम दिस एयरपोर्ट, क्लाइंब, क्रूज, स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट, इसको बोलते हैं क्रूज, डिसेंड, लैंड. यही चार फेज होते हैं एक्चुअल में, ठीक है. इस फेज को हम लोग बोलते हैं क्लाइंब, ठीक है, ये है हमारा क्लाइंब का फेज, और ये वाला फेज है डिसेंड का फेज. ये हो गया हमारा क्रूज फ्लाइट, या फिर इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट, ठीक है, स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट ये वाला. अभी देखो नाम से ये क्लियर है ना, टॉप ऑफ डिसेंड और टॉप ऑफ क्लाइंब. क्लाइंब फेज का टॉप पोजीशन ये रेड वाला डॉट, डिसेंड फेज का टॉप पोजीशन ये ग्रीन वाला डॉट. ये क्या हो गया, टॉप ऑफ डिसेंड, और ये क्या हो गया, टॉप ऑफ क्लाइंब. सो टॉप ऑफ क्लाइंब एंड टॉप ऑफ डिसेंड are the positions when we reach to the maximum of our climbing phase, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ आवर क्लाइंबिंग, हम अपने सीलिंग हाइट तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, जहां तक हमको जाना था हम वहां पे पहुंच गए, ठीक है, तो हो गया टॉप ऑफ क्लाइंब. एंड टॉप ऑफ डिसेंड मीन्स द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम विच वी स्टार्ट डिसेंडिंग, we start descending when we are about to arrive on any airport. जब हम किसी एयरपोर्ट पे पहुंचने वाले होते हैं तो उस केस में जिस मैक्सिमम अल्टीट्यूड से हम नीचे जाना शुरू करेंगे उस पर्टिकुलर मैक्सिमम अल्टीट्यूड को हम कहेंगे टॉप ऑफ डिसेंड. या अल्टरनेटिवली आप इन दोनों पोजीशन को क्रूज से भी कंपेयर करके देख सकते हो, या क्रूज को दूसरे टर्म में बोलते हैं स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट, तो उससे भी कंपेयर करके देख सकते हो. टॉप ऑफ क्लाइंब का मतलब बिगिनिंग ऑफ क्रूज. देखो यहां से हमने क्रूज करना शुरू किया, सो बिगिनिंग ऑफ क्रूज, जिस अल्टीट्यूड से आप क्रूज का बिगिनिंग स्टार्ट करते हो. एंड टॉप ऑफ डिसेंड क्या होगा, टर्मिनेशन ऑफ क्रूज, जिस अल्टीट्यूड से आप क्रूजिंग अल्टीट्यूड का टर्मिनेशन करते हो कि अब आपको स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट नहीं करनी है, अब आप नीचे जा रहे हो, तो उन दोनों पोजीशन को कहेंगे टॉप ऑफ क्लाइंब एंड टॉप ऑफ डिसेंड. होप दिस टू टॉपिक्स आर क्लियर टू ऑल. सबको समझ में आया है क्या एक्चुअल में, दिस इज एन अल्टीट्यूड, राइट.
यस नो एनीथिंग? Yes, yes. सो है ये एक्चुअल में अल्टीट्यूड, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ टाइम। ठीक है, कि करेंटली वी आर पासिंग 600 फीट, टाइम नाउ 1030, टॉप ऑफ क्लाइंब 1050, यानी 10:50 पे हम अपने टॉप ऑफ क्लाइंब पे पहुंच जाएंगे। अल्टीट्यूड के फॉर्मेट में रिपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, वी आर 20 नॉटिकल माइल टू जमशेदपुर। हमारे प्लान में क्या था, हम जमशेदपुर पहुंचने वाले हैं, तो 20 नॉटिकल माइल टू जमशेदपुर, जमशेदपुर से 20 नॉटिकल माइल दूर है। टाइम नाउ 1030, टॉप ऑफ डिसेंड 1035, यानी 5 मिनट में हम डिसेंड करने वाले हैं, 5 मिनट में हम अपना अल्टीट्यूड लूज करने वाले हैं। अंडरस्टूड? है ये एक्चुअल में एक अल्टीट्यूड, एक पोजीशन, लेकिन उसको डिनोट करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम फ्रेम। हैव यू गॉट दैट? सो जस्ट हैव अ लुक ऑन 2 एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ यू, एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स जब आप एक इनिशियल टेक ऑफ या क्लाइंब के फेज को रिपोर्ट करते रहोगे, और जहां पे पॉसिबिलिटी बनता हो कि आप क्रूज के पोजीशन को रिपोर्ट कर सकते हो, वहां पे ध्यान से टॉप ऑफ क्लाइंब को रिपोर्ट करना है। और जहां पे ये पॉसिबिलिटी बनता हो, इस टाइप से लिखा रहेगा कि यू रीच्ड नियर टू योर एयरपोर्ट, यू रीच्ड भोपाल 20 नॉटिकल माइल टू भोपाल, यू रीच्ड जमशेदपुर 30 नॉटिकल माइल टू जमशेदपुर। तो उस केस में टॉप ऑफ डिसेंड, जहां पे ये सिनेरियो बनता हो वहां पे जरूर से जरूर इन दोनों चीजों को रिपोर्ट करना है। जहां पे नहीं बनता है कोई दिक्कत नहीं। डन? तो किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, हैव अ लुक। पोजीशन रिपोर्ट के जैसा ही क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन रहेगा यू आर पासिंग 7000 फीट, बस आप 7000 फीट क्रॉस कर रहे हो। इस क्वेश्चन में देखो 2 सिनेरियो बनता है, क्या? एक तो डिपार्चर रिपोर्ट, दूसरा टॉप ऑफ क्लाइंब का रिपोर्ट। डन? सो वी कैन डू बोथ, हैव अ लुक हाउ दैट कैन गो। भोपाल टावर विस्तारा 518 ऑन 118.1, फ्रीक्वेंसी हाइपोथेटिकल है, देख लेना एक बार चार्ट से। एयरबस 320 IFR भोपाल टू जमशेदपुर, फ्लाइट करेक्शन। देखा करेक्शन का यूज, हमने जो बोला उसको आधा लिख दिया था, अब उसको काट देंगे। ठीक है, पासिंग 7000 फीट फॉर फ्लाइट लेवल 310, टाइम नाउ 1010, टॉप ऑफ क्लाइंब 1030। अभी देखो, इतना बोलने के बाद हमको याद आया डिपार्चर रिपोर्ट तो दिया ही नहीं। हैड डिपार्टेड भोपाल फ्रॉम रनवे 29er at 1005, आकाशा एयर 518। देखो कितना सिंपल है। पोजीशन रिपोर्ट लिख दिया पासिंग 7000 फीट, तो हमने बोला पासिंग 7000 फीट, बाकी के पैरामीटर्स पोजीशन रिपोर्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अभी क्लाइंब करना शुरू ही किए हैं, तो एयरपोर्ट के आसपास ही हूं, उसी के CTR में हूं, ना कोई रूट ना कोई रेडियल, कुछ नहीं। ठीक है, सो 7000 फीट हम पास कर रहे थे। कहां तक जाना था? 310 तक जाना था। अभी बज रहे हैं 10:10। 31000 फीट पे हम कब पहुंचेंगे? 10:30 पे। आवर टॉप ऑफ क्लाइंब इज 31,000 फीट। हैड डिपार्टेड भोपाल फ्रॉम रनवे 29er at 1005, आकाशा एयर 518। डिपार्चर रिपोर्ट भी कर दिया। अंडरस्टूड? तो कॉल के ओरिएंटेशन का कोई लॉजिक नहीं है,
कि पहले आपका आइडेंटिफिकेशन रहेगा, फिर आपका पोजीशन रहना चाहिए, फिर आपके थ्योरी और आपके सिचुएशन रहना चाहिए। नो, कब कहां क्या बोलना है इट डिपेंड्स ऑन यू, बट आपका आंसर स्मूथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अटक अटक के बोलो। डिपार्चर रिपोर्ट पहले देना था, हमने बाद में दिया, नेवर एन इशू, पहले पोजीशन रिपोर्ट कर लेंगे, डन। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टॉप ऑफ डिसेंड। कैसा क्वेश्चन रहेगा? हम लोग जमशेदपुर जाने वाले थे, राइट? सो क्वेश्चन रहेगा, यू हैव अराइव्ड, नो अराइव्ड नहीं रहेगा, यू हैव रीच्ड जमशेदपुर एट 20 नॉटिकल माइल टू डेस्टिनेशन, ऐसा लिखा रहेगा कि आप डेस्टिनेशन से 20 नॉटिकल माइल दूर हो, जमशेदपुर पहुंचने वाले हो। हाउ दैट कॉल कैन गो, हैव अ लुक। जमशेदपुर टावर, आकाशा एयर 518, हाइपोथेटिकली दे रहा हूं, ऑन 123 डेसिमल लाइनर, एयरबस 320, IFR भोपाल टू जमशेदपुर, फ्लाइट लेवल 310, अल्फा 7901, रेडियल 0904, 20 DME, इनबाउंड जमशेदपुर, टाइम नाउ 1145, टॉप ऑफ डिसेंड करेक्शन। देखो कैसे बोल के काटे, बोल सकते हैं ऐसा भी, बट मैंने जान के काटा। रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शंस टू लैंड एट जमशेदपुर। जमशेदपुर पे कैसे लैंड करूं बताओ। टॉप ऑफ डिसेंड 1150, विस्तारा 518। हमने क्या बोला कि वी आर एयरबस 320, करंट पोजीशन इज फ्लाइट लेवल 310, अल्फा 791 हमारा रूट है, रेडियल 0904, 20 नॉटिकल माइल जमशेदपुर से आप नजदीक हो, करंट टाइम इज 11:45। रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शंस टू लैंड एट जमशेदपुर, हम जमशेदपुर लैंड करना चाहते हैं। टॉप ऑफ डिसेंड 11:50, यानी 5 मिनट के बाद हम नीचे उतरना शुरू कर देंगे। हमने एक चीज और मिस किया, ETA जमशेदपुर 1200, विस्तारा 518, क्लोज्ड। ठीक है, कॉल साइन बोलने के बाद भी हमसे अगर कुछ रह जा रहा है तो एक बार फिर से उस पैरामीटर को बोल देंगे। हमने रियलाइज किया कि अरे ETA तो बोलना भूल ही गया। ETA जमशेदपुर 1200, विस्तारा 518। होप यू गॉट दैट। समझ में आ रहा है सबको? विक्टर किलो यूनिफॉर्म अल्फा जूलियट डेल्टा, गुड टू गो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ हाँ। सो लाइकवाइज यू कैन ऑल्सो सी कि मिस्टेक हो गया तो क्या करना है, कोई बड़ी चीज नहीं है, कम्युनिकेशन में अप डाउन होते रहता है। गलती से कुछ निकल गया तो करेक्शन बोल के ऐसे काटना है, कुछ भूल गए तो लास्ट में फिर से बोल देंगे, नेवर एन इशू। So these were the some of the position report conditions which are important to understand. Now next topic I'll open, that is air prox. ठीक है, but before going there just let me have a look on the lecture plan. That's it. By the way, that is going to be a last topic for the today, वो टाइम कंज्यूम कर ही लेगा। तो आज हम देखेंगे एयर प्रॉक्स, बट उस एयर प्रॉक्स का क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे, आज नहीं। ठीक है, सो जस्ट हैव मी अ लुक ऑन लेक्चर प्लान, लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 10 में था पोजीशन रिपोर्ट डन, एयर रिपोर्ट और पायलट रिपोर्ट। कीप इट राइट ऑन पार्किंग लॉट, हम लोग इसको बाद में पढ़ेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, वंस इन अ ईयर वाला सिनेरियो है। कभी कभार एक आध बार पूछ देता है तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, बट अभी के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप लोग इसको नोट करके रखो। एनी हाउ मुझे याद आ जाएगा कि मैंने नहीं पढ़ाया है तो मैं आपको लास्ट में पढ़ा दूंगा।
इनिशियल क्लाइंब या फ्लाइट फेज कॉल, अभी हमने देखा ना, पासिंग 7000 फीट, पासिंग 2000 फीट, 3000 फीट। एक और इसमें कॉल आता है, यू वांट टू क्लाइंब 7000 फीट, ओवरहेड दिस, ओवरहेड दैट। वो हम लोग कल देखेंगे, मॉक प्रैक्टिस में आपको करवाऊंगा। टॉप ऑफ क्लाइंब एंड टॉप ऑफ डिसेंड वी हैड लुक। मॉक प्रैक्टिस चल ही रहे हैं। एयर प्रॉक्स के कंडीशन एक बार और देख लेता हूं, ठीक है। एंड देन लेक्चर 13 तक के टॉपिक कंप्लीट। तो अभी मैं आपको एयर प्रॉक्स पढ़ाऊंगा एंड देन फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स विल मूव ऑन लेक्चर नंबर 14, ठीक है। सो एयर प्रॉक्स, आप सबके मोबाइल फोन में होता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। वो क्या करता है कि जब आप अपने कॉल पे होते हो और मोबाइल फोन को जब आप अपने कान के नजदीक ले जाते हो, नियर टू योर ईयर, दैट टाइम यू माइट हैव नोटिस्ड द लाइट्स ऑफ मोबाइल गेट ऑटोमेटिकली ऑफ। मोबाइल का लाइट अपने आप बंद हो जाता है ताकि कुछ अननेसेसरली टच ना हो जाए। आपके एयरक्राफ्ट के लैंडिंग गियर्स में होते हैं प्रॉक्सिमिटी स्विच, जो कि आपको अप लॉक और डाउन लॉक का इंडिकेशन देते हैं। लैंडिंग गियर अप एंड लॉक किससे पता चला? प्रॉक्सिमिटी स्विच से। डाउन एंड लॉक स्क्वाट स्विच होते हैं, ठीक है। और प्रॉक्सिमिटी स्विच, बेसिकली प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है कि इफ समथिंग इज क्लोज नियर टू यू, इफ समथिंग इज कमिंग इन प्रॉक्सिमेट टू यू, आपके आसपास कोई आ रहा है। तो एयर प्रॉक्स, हवा में आपके आसपास कोई आ गया तो आप उसको रिपोर्ट करोगे, ठीक है। नाउ हैव अ लुक, जब आपको फ्लाइट प्लान का क्लियरेंस मिलता है तो एक बोलते हैं फ्लाइट इनवेलप। आपके एयरक्राफ्ट के, ध्यान से समझना, आपके एयरक्राफ्ट के 20 नॉटिकल माइल आगे और 20 नॉटिकल माइल पीछे कोई दूसरा एयरक्राफ्ट परमिट नहीं करेगा। हाँ, एक चीज ध्यान में रखो, एयरप्रॉक्स का सिनेरियो हमेशा क्रूज में एप्लीकेबल है। लैंडिंग के टाइम पे तो आपके आगे पीछे रहेगा ही रहेगा, लैंडिंग के केस में, टेक ऑफ के केस में, उस केस में नहीं। स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट का ये कंडीशन है। आपके एयरक्राफ्ट के 20 नॉटिकल माइल आगे, 20 नॉटिकल माइल पीछे कोई नहीं रहेगा। 15 नॉटिकल माइल लेटरली, लेटरल, ठीक है, विड्थ वाइज कोई नहीं रहेगा लेटरल में। 20 नॉटिकल माइल लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, सामने कोई नहीं। 15 नॉटिकल माइल लेटरल कोई नहीं, ठीक है। अल्टीट्यूड वाइज 2000 फीट अबव और बिलो, 2000 फीट अबव और बिलो कोई नहीं रहेगा इफ यू आर इन नॉन आरवीएसएम एयर स्पेस, एंड 1000 फीट अबव एंड बिलो कोई नहीं रहेगा इफ यू आर इन आरवीएसएम एयर स्पेस। आरवीएसएम एयर स्पेस अगर आपको पता है वेरी गुड, नहीं पता है जस्ट हैव अ लुक। अगर आप फ्लाइट लेवल 29,000 फीट से लेके 41,000 के बीच में फ्लाई कर रहे हो, ठीक है, उस फ्लाइट लेवल को बोलते हैं आरवीएसएम एयर स्पेस, इन दोनों के जोन में। तो अगर आप 29,000 से 41,000 के फीट में फ्लाई कर रहे हो तो 1,000 फीट के सेपरेशन में कोई एयरक्राफ्ट नहीं रहेगा। अबव देन 41,000 फीट एंड बिलो 29,000 फीट, 2,000 फीट ऊपर और नीचे कोई नहीं रहेगा। तो इस फ्लाइट इनवेलप को देखो, फिर ये एक इनवेलप जैसा बन जाएगा ना, आपके आगे पीछे कोई नहीं है, ना ऊपर नीचे, ठीक है। तो आपका क्या होगा जनाब अली? यू कैन कंटिन्यूअसली मूविंग ऑन एट योर स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट, ठीक है, आप मस्ती में चलते रहोगे क्योंकि आपके फ्लाइट इनवेलप को सिक्योर किया गया है। इसके अलावा अगर कोई एयरक्राफ्ट यहां पे एंटर करता है आपके फ्लाई जोन में, आपके फ्लाइट इनवेलप में, उसको आप रिपोर्ट करो सकते हो, ठीक है, उसको आप रिपोर्ट कर सकते हो कि हमारे एरिया में तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, हमारे एरिया में तुम क्या कर रहे हो। अगर अननोइंगली इंटर किया है तो, अगर आपके इंफॉर्मेशन में है, एटीसी ने आपको इंफॉर्म किया या आप एटीसी पे सुन पा रहे हो कि कोई एयरक्राफ्ट आपके आसपास आ रहा है,
तो रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। स्टिल अगर वो आपके बहुत ज्यादा क्लोज आ जा रहा है तो भी आप उसको रिपोर्ट करोगे कि तुम हमारे इतने पास से क्यों गुजरे। ये तो हो गया रिपोर्टिंग के मेथड कि आप एटीसी को बता दोगे। लेकिन क्या हमेशा रिपोर्ट आपका काम करेगा? सपोज आपके एरिया में कोई गुंडा बदमाश है, तो क्या पुलिस को इन्फॉर्म करने से आपका काम बन जाएगा? नो। क्या पुलिस को पता नहीं है कि वो आपके एरिया में गुंडा बदमाश है? पता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको खुद वेपन खरीदने पड़ेंगे फॉर द प्रोटेक्शन, या आपको खुद मजबूत होना पड़ेगा। इसके लिए हमारे एयरक्राफ्ट में लगाए गए टी-कैश। आसपास लोग आएंगे, ठीक है, एयरक्राफ्ट आपके फ्लाइट इन्वेलप में एंटर करेंगे, हमने लगाया टी-कैश। ट्रैफिक कोलिजन, आगे क्या है? एवॉइडेंस Avoidance सिस्टम, ठीक है, ट्रैफिक कोलिजन एवॉइडेंस सिस्टम। यानी आपके इन्वेलप के बीच में अगर कोई ट्रैफिक एंट्री हो रही है, कोई भी अननोन फ्लाइट को जनरली बोला जाता है ट्रैफिक, या किसी भी टाइप के रास्ते में पड़ने वाले एयरक्राफ्ट या कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है उसको आप जनरली ट्रैफिक बोलते हो। तो ये वाला ट्रैफिक आपसे आके कोलाइड ना कर जाए, इसके लिए हमारे पास टी-कैश है। तो आप रडार के स्क्रीन पे देखते रहोगे कि कौन कितना हमसे दूर है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द डिस्टेंस, कौन सा ट्रैफिक आपसे कितना दूर है, रडार स्क्रीन पे आपको दिखेगा। लेट मी शो यू द रडार स्क्रीन। इधर गया, हाँ, टी-कैश, हाँ, ये देखो रडार स्क्रीन। आपको ये आर्क दिख रहा है, आधे आधे आर्क, टोटल 4 आपको आर्क दिख रहे होंगे, राइट। लेट मी शो द अनदर इमेज, हाँ, दिस वन, ये आपको आर्क दिख रहा है। पहला आर्क है 5 नॉटिकल माइल का, दूसरा आर्क 10 नॉटिकल माइल, तीसरा 15, चौथा 20। आप इसको ट्यून करके आगे पीछे भी कर सकते हो। सो इन ऑल दीज आर्क्स डिस्टेंस इज गिवन। और यहां देखो व्हाइट क्वाड्रिलेटरल, दिस इंडिकेट वन ऑफ द ट्रैफिक, एक एयरक्राफ्ट है ये। रेड कलर का ये डायमंड ट्रैफिक है ये। येलो सर्कल, दिस इज ऑल्सो ए ट्रैफिक, ठीक है। सो टी-कैश पे आपको इस तरह के अवॉइडेंस और उसके रिकॉग्निशन के अलर्ट आते हैं। रेड हो रहा है मींस दैट इज थ्रेट फॉर यू। किस चीज का थ्रेट? कोलिजन का थ्रेट। येलो हो रहा है तो पोटेंशियल थ्रेट, मींस हो सकता है टक्कर मार दे, मारा नहीं है। 10 नॉटिकल माइल में आ गया तो प्रोक्सीमेट में आ गया आपके, और उससे ज्यादा दूर है तो नो थ्रेट, लाइक दिस। सो बेस्ड ऑन द डिस्टेंसेस यू कैन ऑब्जर्व ऑन योर टी-कैश स्क्रीन, एयरप्रॉक्स का एक कैटेगरी होता है, ठीक है। एयरप्रॉक्स के रिपोर्टिंग और डिस्टेंस का कुछ कैटेगरी है। क्या है? विल हैव अ लुक। पैरामीटर क्या है? डिस्टेंस। ध्यान में रखना, एयरप्रॉक्स को किस चीज से हम कंपेयर करेंगे? डिस्टेंस से, कि हमारा एयरक्राफ्ट किसी से कितना दूर है, या कोई अननोन या नोन एयरक्राफ्ट आपसे कितना दूर या नजदीक आ गया, ठीक है। मेरे को मेरे नोट में ही जल्दी टॉपिक नहीं मिलता है, जस्ट अ सेकेंड। और ये मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूं ताकि आप पढ़ाई कर सको। होल्ड ऑन अ मिनट, लेट मी गो टू द टॉपिक ताकि आपको पढ़ना इजी रहे। लिखा भी है कि नहीं? हाँ, इधर ही है, ठीक है। सो यू कैन सी एयरप्रॉक्स के कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंसेस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंसेस। टोटल 4 कैटेगरी डन एयरप्रॉक्स के। अगर कोई एयरक्राफ्ट हमारे 3 नॉटिकल माइल के अंदर आ गया, हमारे विसिनिटी, हमारे आसपास लेस देन 3 नॉटिकल माइल से क्रॉस कर रहा है, तो वो हमारे लिए कोलिजन थ्रेट है। तो उस चीज को हम डिनोट करेंगे विद द फ्रेज रिस्क ऑफ कोलिजन। कैसे बोलेंगे? एयरप्रॉक्स रिस्क ऑफ कोलिजन। कल हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिखेगा। आज आपको इन सारे कैटेगरी को रट के रखना है। एयरप्रॉक्स रिस्क ऑफ कोलिजन, अगर कोई एयरक्राफ्ट 3 से 5 नॉटिकल माइल के बीच में आ गया तो एयरप्रॉक्स
सेफ्टी नॉट अश्योर्ड। ठीक है, कोई एयरक्राफ्ट 5 से 10 नॉटिकल माइल के बीच में आया, एयर प्रॉक्स नो रिस्क ऑफ कोलिजन। तो आप बोलोगे जब कोलिजन का खतरा नहीं तो रिपोर्ट क्यों कर रहे हो? हम रिपोर्ट कर रहे हैं एयर प्रॉक्स कि हमारे पास आया कोई, आपने बोला था 20 नॉटिकल माइल तक कोई नहीं रहेगा, ये क्या करने आ रहा है इधर। ठीक है, सो 4 कैटेगरी। पहला लेस देन 3 नॉटिकल माइल, एयर प्रॉक्स रिस्क ऑफ कोलिजन। दूसरा 3 से 5 नॉटिकल माइल के बीच में, एयर प्रॉक्स सेफ्टी नॉट एश्योर्ड। तीसरा एयर प्रॉक्स 5 to 10 नॉटिकल में, एयर प्रॉक्स नो रिस्क ऑफ कोलिजन। एंड चौथा नो डिस्टेंस, इस केस में बोलेंगे एयर प्रॉक्स रिस्क नॉट डिटरमाइन। अब देखो एक कंडीशन, अगर कोई एयरक्राफ्ट आपके आसपास से गुजरेगा तो आपको वो पता चलेगा कैसे? टीकैश पे, कि कोई भी एयरक्राफ्ट कितने दूर से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये नो डिस्टेंस का फिर क्या मतलब है? अगर कोई एयरक्राफ्ट आपके आसपास से कितना भी क्लोज गुजरे, अगर उसका ट्रांसपॉन्डर ऑन है तो वो आपके टिकैश में कैप्चर होगा, जरूर से जरूर कैप्चर होगा। अगर आपके टिकैश में कैप्चर नहीं हुआ तो आपकी इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि आप उसको देख पाओगे। जो चीज रडार में नहीं आया आपके नजर में तो आने से रहा। ठीक है, फिर बोलोगे सर ये नो डिस्टेंस का क्या मतलब? क्वेश्चन में जो आपको क्वेश्चन आएंगे अगर उसमें डिस्टेंस मेंशन है, ठीक है, तो आप इन तीनों कैटेगरी से आंसर करोगे। अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस ही मेंशन नहीं है तो आप बोलोगे एयर प्रॉक्स रिस्क नॉट डिटरमाइंड, पता ही नहीं चला वो हमसे कितना दूर है। ठीक है, सो दीज 4 कैटेगरीज, लेस देन 3 नॉटिकल माइल, एयर प्रॉक्स रिस्क ऑफ कोलिजन, 3 to 5 एयर प्रॉक्स सेफ्टी नॉट एश्योर्ड, 5 to 10 नो रिस्क ऑफ कोलिजन, नो डिस्टेंस मींस रिस्क नॉट डिटरमाइंड। क्लियर, समझ में आया सबको सारे कैटेगरी? डन। सो जस्ट हैव अ Yes. लुक ऑन द चार्ट। आज हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर भी लेंगे, ठीक है, कि हाउ दैट कॉल कैन गो। एक सैंपल तो जरूर दे दूंगा ताकि आपको समझ में आए। जस्ट हैव अ लुक ऑन चार्ट। अभी क्या कंडीशन हो सकता है चार्ट से समझेंगे, क्योंकि हमारे पास चार्ट ही है आंसर करने के लिए। वी वेयर ऑन चार्ट नंबर 4 टुडे, राइट? विल गो देयर ओनली। भोपाल टू जमशेदपुर। अभी देखो कंडीशन क्या बनेगा या क्वेश्चन क्या बनता है। आप जबलपुर से 20 नॉटिकल माइल आगे फ्लाई कर रहे हो, अचानक से कोई एयरक्राफ्ट आया और आपको ओवरटेक कर दिया, ऐसे आके आगे से निकल गया। रेड डॉट विजिबल है सबको, रेड लाइन? यस सर। यस नो एनीथिंग? ठीक है, तो कोई एयरक्राफ्ट पीछे से फ्लाई करते हुए और ऐसा निकल गया, या सामने से कोई एयरक्राफ्ट सन्ने से ऐसा पास किया, ठीक है, तो आप उसको एयर प्रॉक्स में रिपोर्ट करोगे। एयर प्रॉक्स के कॉल में अगर आपने पोजीशन रिपोर्ट किया तो आपको कोई स्पेशल नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं किया तो नंबर कटेगा जरूर, क्योंकि आपको किस पोजीशन पे किसी से पाला पड़ा, आप कहां थे कि कोई एयरक्राफ्ट आपको झटका देके जा रहा है, ये आपको रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कैसा रहेगा क्वेश्चन कि यू आर 20 नॉटिकल माइल टू फ्रॉम जबलपुर, वन एयरक्राफ्ट ओवरटेकन यू फ्रॉम द राइट, इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, तो आप उसको आंसर करोगे। So I'm taking you to the note first and then we'll go to the answer. ठीक है, तो नोट में एयर प्रॉक्स का कॉल कौन से पेज नंबर पे था? इधर ही आसपास किधर तो है। Just a second, let me go there. Hold on a second, let me Page search. number 21. Thank you. ठीक है, मैं अपने नोट मेरे को ही नहीं मिलता है। ओके, बिकॉज आदत इतनी ज्यादा हो गई टॉपिक्स पढ़ाने की कि नोट पे ध्यान ही नहीं जाता है, ऐसे ही ब्लाइंडली पढ़ाना पड़ रहा है।
तो टॉपिक मिलता ही नहीं है। चलो अभी क्या है, कंडीशन देखो, क्वेश्चन में बहुत सिंपल से लिखा हुआ है ना कि आप ये देखो, ये आपका फ्लाइट प्लान है पूरा, देखो विकेट टैंगो अल्फा नवंबर किलो, टॉप ऑफ डिसेंट है, टाइम ऑफ डिपार्चर, सॉरी दिस इज टाइम ऑफ डिपार्चर 10:15, एयरक्राफ्ट टाइप एयरबस 320, विक टर्बुलेंस मीडियम, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल, ऑल इक्विपमेंट स्टैंडर्ड, गोल्फ 450 इज रूट मुंबई टू नागपुर, फ्लाइट लेवल 290 अल्टरनेटिव भोपाल। अब आपने क्या देखा यहाँ पे कॉल में कि यू हैव सीन वन एयरक्राफ्ट ओवरटेकन यू नियर ड्यू बॉक्स and take a sharp turn to the left at 5 nautical mile. डिस्टेंस लिखा, तो 3 से 5 वाला में हमारा क्या था, सेफ्टी नॉट एश्योर्ड, एम आई राइट? तो 3 से 5 में है सेफ्टी नॉट एश्योर्ड, तो इसको कैसे रिपोर्ट करेंगे? वेरी सिंपल, सबसे पहले अपना पोजीशन रिपोर्ट एंड देन वी विल से एयरप्रॉक्स सेफ्टी नॉट एश्योर्ड। क्या हो गया भैया, क्यों सेफ्टी नॉट एश्योर्ड? आई हैव साइटेड, मैंने देखा कि एक इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट हमको राइट से ओवरटेक किया एंड टेक अ शार्प टर्न, ठीक है, टेक अ शार्प टर्न टू द लेफ्ट साइड और टू द राइट साइड, वट एवर द साइड। और हमने ये भी देखा कि लेफ्ट साइड में इंदौर पड़ता था, तो हमने उसको एडिशनली वो भी मेंशन कर दिया कि इंदौर की तरफ जा रहा था वो कल्प्रिट जो हमको ओवरटेक करके गया, ठीक है। टाइम ऑफ इंसिडेंस, किस टाइम पे आपको प्रॉब्लम हुई वो मेंशन करना जरूरी है। टाइम ऑफ इंसिडेंस हमेशा आपके करंट टाइम से 1 या 2 मिनट पीछे रहेगा, 3 to 5 मिनट्स भी मैक्सिमम ले सकते हो, पीछे रहेगा, बट दिस प्रॉक्सिमिटी पासिंग शैल बी रिपोर्टेड, ठीक है। सो विल टेक अ लुक ऑन एग्जाम्पल ऑफ सच कॉल्स, ठीक है। अगर किसी को आंसर करने का मन हो, जिन्होंने आंसर देख लिया हो, अगर वो आंसर करने का मन हो तो आप आंसर कर सकते हो, अदरवाइज आई विल डेफिनेटली गिव द आंसर, ठीक है। सो द क्वेश्चन कम्स नियर टू यू इज, यू आर, ठीक है, 20 नॉटिकल माइल फ्रॉम जबलपुर, 20 नॉटिकल माइल फ्रॉम जबलपुर, ठीक है। आगे, वन इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट overtaken you from left and made a sharp turn ahead of you at 04 nautical mile. TA, take action. Anyone wants to give a call or shall I go ahead? चलो मैं ही दे देता हूं। How this call can go? Just have a look. Nagpur control, Vistara 518 on 123.9er, Airbus It's Varanasi control or 320. Nagpur control? Very good. It is Varanasi control. Okay. After Jabalpur, if your flight level is 310, it should be Varanasi control. हालांकि फ्लाइट प्लान मेरे को याद नहीं था, आई वाज गिविंग हाइपोथेटिकल, बट थैंक यू टू रिमाइंड मी द प्लान, आई विल स्टिक टू दैट, ठीक है। वाराणसी कंट्रोल, विस्तारा 518 ऑन, क्या है उसका, 119.0, एयरबस 320 IFR भोपाल टू जमशेदपुर। डन। पोजीशन, current position on flight level 310 alpha 791 radial 0904 20 DME outbound Jabalpur. Time now 1030.
अब आता है मेन चीज, एयरप्रॉक्स सेफ्टी नोट अश्योर्ड। क्वेश्चन में कितना लिया है हमने? 4 नॉटिकल माइल। 4 नॉटिकल माइल में क्या है? 3 से 5 वाला क्लॉज लगेगा, राइट। सेफ्टी नोट अश्योर्ड क्या हो गया भैया? वाई सेफ्टी नोट अश्योर्ड? 1 इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट ओवरटेकन फ्रॉम, क्वेश्चन में जो लिखा है फ्रॉम लेफ्ट एंड मेड अ शार्प टर्न अहेड ऑफ अस। यहां पे आप डिस्टेंस मेंशन करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो कर दो एट 04 नॉटिकल माइल, बट नहीं भी करोगे तो चलेगा, सीधा मेड अ शार्प टर्न अहेड ऑफ अस मूविंग टुवर्ड्स। अगर आप क्या कहते हैं, जबलपुर से कोई आपको लेफ्ट से ओवरटेक कर रहा है तो राइट साइड में किधर जाएगा? रायपुर की तरफ। मूविंग टुवर्ड्स रायपुर, ऑप्शनल, चाहो तो लिखो चाहो तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। मूविंग टुवर्ड्स नागपुर। टाइम ऑफ इंसिडेंस 1027 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, रिक्वेस्ट इन्वेस्टिगेशन। आकाशा सॉरी विस्तारा 518। ठीक है, हमने अपना पोजीशन रिपोर्ट किया और कंडीशन मेंशन किया, एयरप्रॉक्स सेफ्टी नोट एश्योर्ड। क्यों भैया? वाई सेफ्टी नोट एश्योर्ड? क्योंकि एक इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट ओवरटेक किया हमको लेफ्ट साइड से और हमारे आगे, ठीक है, हम ऐसा मस्ती में जा रहे थे, लेफ्ट से आया और ऐसा शार्प टर्न मार दिया, टक्कर हो जाता तो। एंड मेड अ शार्प टर्न अहेड ऑफ अस एट 04 नॉटिकल माइल, क्वेश्चन में दिया हुआ है, चाहो तो मेंशन करो, मत चाहो तो मत मेंशन करो, कोई दिक्कत नहीं। एंड मूविंग टुवर्ड्स रायपुर, हम राइट साइड में देखा तो रायपुर जैसा दिख रहा था, तो रायपुर के साइड जा रहा होगा। टाइम ऑफ इंसिडेंस 1027, 10:27 पे हमारे साथ ये घटना हुई। रिक्वेस्ट इन्वेस्टिगेशन विस्तारा 518। डन? समझ में आया सबको? यस। Confirm. तो कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो कॉल, उसमें एयरप्रॉक्स भी इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, कल के मॉकअप में एयरप्रॉक्स इन्वॉल्व रहेगा। एंड देन we'll move ahead with our next topic. Let me see the plan, lecture plan किधर गया? सो आज हमने लेक्चर 13 तक के सारे टॉपिक कवर कर लिए, राइट। सो कल हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपको कॉल दिखेंगे, मेडे, पेन पेन, बी रेडी फॉर दैट। और बेसिक कॉल का भी याद रखना, ग्राउंड रन का भी कॉल मैं दे सकता हूं किसी को बोलने। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आगे बढ़ते जाएंगे तो भारी भारी कॉल करेंगे और छोटे छोटे मिस करते जाएंगे। इवन छोटे कॉल्स आर इंपॉर्टेंट इन आरटी, क्योंकि अगर आपने टैक्सी रिक्वेस्ट ही सही से नहीं दिया तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से आगे ही नहीं बढ़ने देगा। ठीक है, सो बी रेडी फॉर इट। भले छोटा क्वेश्चन है, 2 लाइन का आंसर है, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 का ही आंसर सही से नहीं किया तो सेकेंड थर्ड तो भूल ही जाओ, पोजीशन रिपोर्ट और एयरप्रॉक्स तो भूल ही जाओ। टैक्सी नहीं किए, पूरा चौपट, वहीं से आगे ही नहीं हिलने देगा। अब आप बोलोगे कि सर वन स्टूडेंट हैड आस्क्ड द क्वेश्चन कि सर क्या हो अगर हमको किसी भी केस में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आए ही नहीं, हम क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कर ही नहीं सकते, तो क्या करो? तो जैसे तैसे गलत सही किसी भी तरह से उसका आंसर करो, चुप नहीं रहना है। चुप रहोगे तब तो वो हिलने नहीं देगा, गारंटीड, बिल्कुल नहीं आगे बढ़ने देगा। जैसे तैसे गलत सलत उसका आंसर करो, ठीक है, ताकि वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने के लिए बोले। आप उसका जैसे तैसे आंसर करो, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा 0 नंबर देगा, बट अगले क्वेश्चन पे जाने के लिए परमिट करेगा। अगर फिर भी नहीं परमिट कर रहा है, एकदम अड़ गया कि नहीं, चाहे जो हो जाए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तुमसे सुन के ही रहूंगा, फिर आप बोलो गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिर आप अपने साइड से बोल लो गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
डोंट लेट द एग्जामिनर से एनीथिंग। आप ही बोलो सर अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, फेल कर दोगे, वैसे ही होने वाला हूँ, तो सेकंड का ही आंसर दे लेता हूँ, क्या पता आपको अच्छा लगे। डन। तो इस टाइप से आगे बढ़ा जाता है। एंड बी रेडी फॉर इट। आपको एग्जामिनर परेशान करेगा, ठीक है। वन ऑफ माय स्टूडेंट वाज वेरी ग्रेट इन आंसरिंग, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर डिस्कस करता था। एंड व्हेन ही वेंट टू द एग्जामिनेशन, एग्जामिनर ने उसको इतना परेशान किया कि रिटर्न में आके वो मेरे से कंप्लेन कर रहा है कि व्हाई यू हैव नॉट पोक्ड मी ड्यूरिंग माय क्लासेस। आपने क्लास में मुझे क्यों नहीं परेशान किया, क्यों आपने मुझे मीठा मीठा ऐसा एकदम स्ट्रॉबेरी खिला के पढ़ाया कि एग्जाम में जाके मुझे वो भारी पड़ गया, ठीक है। सो आई हैव फेस्ड दैट सीन ऑल्सो, दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग यू ट्रबलिंग। तभी मैं बीच बीच में टोन हाई लो, डांटना चिल्लाना डपटना हर टाइप से मिक्स करके पढ़ाता हूँ। बी रेडी फॉर इट। और आरटी में खास करके एग्जामिनर को बोला जाता है कि उसको नर्वस करो, परेशान करो एग्जामिनर को, सॉरी स्टूडेंट को, तब वो कैसा परफॉर्म करता है। एक तो एग्जाम का प्रेशर, ऊपर से एग्जामिनर की डांट, इन दोनों के बीच में अगर आप आंसर कर पाते हो तभी आप आरटी पास करते हो। इसीलिए रिजल्ट का रेशियो बहुत कम है, 10% रिजल्ट होता है आइडियली। आज भी रिजल्ट आया ना आरटी का, 5000 स्टूडेंट में 500 स्टूडेंट पास हुए रहेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से ही आरटी का रिजल्ट होता है। क्यों? क्योंकि आप प्रेम से आंसर नहीं कर सकते, वो आपको करने ही नहीं देगा, चैन से आंसर करने ही नहीं देगा। So be ready for it. And tomorrow is Saturday and Sunday. I don't know your company's work hours and work schedule, but if Saturday, Sunday is free, do the practice thoroughly till lecture 13. अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस करो। अब टाइम आ गया है सीरियस होने का, ठीक है। सारे प्रीवियस डेटा को, सैटरडे संडे आपका छुट्टी आ रहा है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। डन? इज दैट गुड एवरीवन? Yes, sir. Done. ठीक है। So we'll see you tomorrow. अच्छा, this time result is a little high. It went till 700, but still this is not so much. 700 is 15% result, 15%. So likewise it only goes. 8000 7000 स्टूडेंट में 700 स्टूडेंट पास करते हैं आरटी का। क्यों? इसी सब रीजन से। तो आप दुरुस्त रहो, बोल रहो और प्रैक्टिस अच्छे से करो। ऐसा नहीं कि 5वें 10वें दिन हमने हायर लेवल के क्वेश्चन पढ़ लिए और ग्राउंड रन का ही कॉल मिस कर गए, रीडेबिलिटी चेक करना ही मिस कर गए, हाउ डू यू रीड के बदले बोल दिया हाउ आर यू रीडिंग मी। तो इतना इतना ब्लंडर करोगे ना तो एग्जामिनर गुस्सा भी होता है। आई हैव सीन हाउ दे आर एंग्री, और वो अगर किसी दूसरे से गुस्सा है तो उसका गुस्सा आप पे भी निकलेगा, ठीक है। तो ये सारे कंडीशंस आते हैं। सो सर दैट्स ऑल फॉर टुडे देन। हाँ, एक छोटा बोलो सा बोलो बोलो। क्वेश्चन। यस कहते यस। सर जैसे बोलते हैं गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, तो क्वेश्चन पढ़ने और समझने का टाइम मिलता है? यस यस। आपके पास 30 मिनट है, आप चाहो तो 10 मिनट क्वेश्चन पढ़ने और समझने में ले लो, बाकी 20 मिनट में आंसर करो, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन समझने में सपोज टाइम लग रहा है, इट वाज आल्सो अ सिनेरियो, ठीक है, इट हैपेंड विद मी ओनली, ठीक है, मेरे ही साथ हुआ। when I'll give you two examples, ठीक है, because these things are required। नहीं तो छोटे छोटे चीजों से क्या होता है, आपको अगर इन्वायरमेंट ही नहीं बताऊंगा तो आप पे वो प्रेशर बना देगा डायरेक्टली। एक बार तो मेरे साथ हुआ कि इन हैदराबाद आई डोंट नो द आंसर कंप्लीटली, तो मुझे पता ही था कि मैं फेल होने वाला हूँ, ठीक है, इट वाज क्वाइट ऑब्वियस। सो ही वोंट अलाउ मी टू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैं ही इधर से पुश करता था कि सर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दो बार बोलोगे ना तो वो बोल देगा अच्छा चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आओ जाओ, लाइक दैट। एंड देयर आई हैव सीन कि व्हाट वाज योर डाउट कि बीच में टाइम देगा कि नहीं। हाँ, आंसर तो मुझे आता ही नहीं था, ठीक है, आंसर तो मुझे आता ही नहीं था। सो आई वाज टेकिंग 3 to 5 मिनट्स टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे ही समझ गए कि क्या आंसर कर सकते हैं, जरा देखता हूं। सो बीच बीच में वो पूछते रहता था आर यू रेडी फॉर द आंसर, आर यू रेडी फॉर द आंसर। मैं कुछ नहीं बोलूंगा,
अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो वेट करेगा कि 30 मिनट बीत जाए, ये भी चला जाए, आराम से उठ के मैं भी चला जाता हूँ। एंड वहां पे मैं उसको बोलता था कि सर 2 मिनट्स, सर 1 मिनट, मैं आंसर कर रहा हूं, तो वो वेट करेगा। आप अपना टाइम लो, वो वेट करेगा। एंड इन दिल्ली व्हेन आई हैड पास्ड द एग्जामिनेशन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, आई डोंट नो व्हाट वाज द नर्वसनेस इंड्यूस इनटू द मी, क्वेश्चन नंबर सेकंड वाज ट्रेस्ड। मेरे को क्वेश्चन नंबर सेकंड में 0 नंबर मिले थे, 0। मेरे से पूरा ब्लंडर हो गया था, कुछ तो ऐसा पता नहीं क्या हुआ, पूरा गड़बड़ हो गया कॉल, और वो मेरे पे अच्छे से चिल्लाया, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा बहुत अच्छा गया था, तो सेकंड में उसने मेरे को डांट लगाई। एंड जब थर्ड आंसर करने की बारी आई तो मैंने पूरा 2 मिनट टाइम लिया, और उस बीच में वो गुस्से में मेरे ऊपर चिल्ला रहा था लिटरली कि आर यू रेडी फॉर द आंसर, आर यू रेडी फॉर द आंसर, आर यू गोइंग टू आंसर। मैंने थोड़ा सा बोल्डली, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होल्ड लेके बोला कि सर आई विल आंसर बाय माई सेल्फ, ठीक है, मैं आराम से आंसर करूंगा। तो बोलता है रॉजर। फिर मैंने 2 से 3 मिनट का टाइम गैप लिया, अच्छे से थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करके डीप ब्रीदिंग के साथ क्वेश्चन नंबर थर्ड फाइनली आंसर किया, एंड इट वाज 20 on 20। तो इट इज डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको टाइम लग रहा है आप लो, वो आप पे वहां पे कमांड दे लेके नहीं बैठा है, ही जस्ट एग्जामिनर एंड यू आर द स्टूडेंट। वो आपका आंसर नोट करने के लिए बैठा है। अगर वो आपको परेशान करता है, आप बस थोड़ा सा बोल्ड रहो और अपने आप में कंट्रोल में रहो। आप बस ये सोचो कि उसका काम है आपको परेशान करना, और आपकी ड्यूटी है परेशान नहीं होना। तो भले वो आपको बोलेगा कि जल्दी जल्दी आंसर करो, जल्दी, तुम्हारा क्या जा रहा है भाई, मेरे को आधा घंटा मिला, मैं घूम के जाऊंगा, लाइक दैट, ठीक है। सो इट इज अप टू यू, आपको टाइम लग रहा है आप टाइम लो। डन। So that's all for today, and from today onwards I'll also keep you motivating for some times, क्योंकि कंटिन्यूअस पढ़ते पढ़ते अगर आप एग्जाम इन्वायरमेंट को नहीं जान पाओगे तो भी मुश्किल है, बिकॉज अटेम्प्ट्स आर लिमिटेड। अगर आप दूसरे की गलती से सीखोगे आप बेहतर सीखोगे, खुद से गलती करने जाके सीखोगे तो 2 ही अटेम्प्ट अपने पास बचे हैं डब्ल्यूपीसी के, मुंबई एंड चेन्नई। ये दोनों भी मिस हुआ तो पता नहीं डीजीसी क्या ही नाटक करेगा इन फ्यूचर में। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। थोड़ा थोड़ा आपको एग्जाम के इन्वायरमेंट का भी गाइडेंस दूंगा ताकि आप परफेक्टली एग्जाम के इन्वायरमेंट को सिमुलेट कर पाए। एंड इन क्लास जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आई नोटिस टिल टुडे ऑल्सो, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मारा मारी नहीं कर रहे हो, आप लोग आगे नहीं बढ़ के आ रहे हो, ठीक है। बोलना पड़ता है कि तुम आंसर करो, तुम आंसर करो, आगे बढ़ो, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक होगा। यही रियल एग्जामिनेशन का सिनेरियो है, आगे बढ़ो, यहीं से प्रैक्टिस होगी, ठीक है। एंड आज जो 3 4 5 लोगों का रिजल्ट हुआ ना पिछले सेशन में, बाय चांस उन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, नहीं तो उन सब हालांकि जो पिछले भी पास हुए वो सब, नहीं तो मैंने ऐसे ऐसे भी बैच देखे हैं ना जहां पे धुरंधर, मैंने क्वेश्चन बोला नहीं कि उनका आंसर तपाक से आया। फ्रेशर्स को, बिगिनर्स को मौका ही नहीं मिलता था क्लास में कि वो आंसर समझ भी पाए या आंसर बोल भी पाए। मैंने क्वेश्चन लिखा, आंसर आ गया पीछे से। तो ऐसे ऐसे भी कैंडिडेट रहते हैं, क्योंकि सिलेबस टफ है ही नहीं। अभी आपके पास टाइम है, यू ऑल 3 आर ऑन बिगिनर लेवल, आगे आओ, आंसर को परफॉर्म करने का टाइम लो, नहीं तो आज जो जो फेल हुए हैं अगर वो वापस आए तो आपको मौका नहीं देंगे। और मैं एज ए ट्यूटर क्लास में क्या ही बोलूंगा, ज्यादा से ज्यादा बोल सकता हूँ कि तुम रुक जाओ, तुम आंसर करो, बट दिस वोंट हैपन मच। तो अभी खाली टाइम है, थोड़ा सा आगे आके come ahead and try to answer the questions. Done? Yes, sir. Chalo, that's all for today then. I'm completing the meeting. We'll see you tomorrow. Okay, sir. Same time. Same time, 9 o'clock. Same time, same time.